In No, that's true. in 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days. No, that's true. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days. No, that's true. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days. नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज संसद में विशेष सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान जो पुराना संसद भवन है उससे विदाई भी ली गई। इस दौरान संसद भवन से विदाई लेते हुए लोग भावुक होते हुए भी नजर आए। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया पुरानी संसद भवन में भाषण के दौरान कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई? आखिरकार क्यों सोनिया गांधी अचानक से गुस्सा करती हुई नजर आई और गुस्साते हुए सोनिया गांधी ने सीधे और साफ तौर पर सदन में मौजूद सभी लोगों पर चिल्लाते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर दिया? क्या थी वो वजह जिसके चलते भरे सदन में सोनिया गांधी आग बबूला हो गई? देखिए ये रिपोर्ट। आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स of an ambition to establish a one party dictatorship. ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। This has led to the sidelining of the opposition's role in parliament, destabilization of opposition-led governments through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. No, that's true. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा? ये हमारे डेप्यूटी लीडर है, पूछिए ना। सर हो गया। The first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition, sir, मान के चलिए, India's transition from one party dominant system to multi-party system and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए तो हमारी बात भी सुन लें। ये क्या मर्यादा रही? I'm just coming. सर, ये हमारे ये उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे, ये देखिए बैग, आपके बैग यहीं पे, आप तो चले नहीं गए, आप तो चले नहीं गए, आ रहे वापस, चिंता नहीं आ रही है। आपके कहाँ गए? बहुत लंबी भाषण के, अरे आ रहे भाई, आप कहाँ जा रहे? सर, please, sir, I must appreciate
your endeavor for offering this opportunity to ventilate our views on the constitutional दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बात यह सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं सर। सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रहे हैं कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही महीनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज। माननीय सदस्य नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर क्या है सर? जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने चलते ही सांस भर लिए। पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our old building. Our magnificent building today singing a swan song, because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary edifice. सर, मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अंबेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are
not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this House, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अपना भाषण दे रहे थे। इस दौरान अचानक से पक्ष यानी कि जो एनडीए से समर्थक हैं, जो तमाम नेता वहां पर, मंत्री वहां पर मौजूद थे, वो अधीर रंजन के इस बयान पर नाराज हो गए और नाराज होकर वो सदन में चिल्लाने लगे, अपने विरोध को जाहिर करने लगे। और ऐसे में सोनिया गांधी साफ तौर पर उन्हें रोकती हुई नजर आई और ये कहती हुई नजर आई कि कम से कम अधीर रंजन चौधरी जी को बोलने तो दीजिए, क्योंकि हर किसी को सदन में अपना वक्तव्य देने का अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। फिर आखिरकार क्यों यहाँ पर जो तमाम मंत्री थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए? सोनिया गांधी यूं तो बेहद ही कम बोलती हैं, लेकिन वो जब भी बोलती हैं तीखा बोलती हैं और उनके बयान के बाद वाकई में हर कोई खामोश हो जाता है। ऐसा ही सदन में भी देखने को मिला। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।